Hello everyone, welcome back to Career Launcher Ranchi. Guys, this is going to be the second episode of Venn diagram. In yesterday's lecture, we have discussed the basic concepts of Venn diagram along with the set, or that set was a four-set Venn diagram. Today, we are going to solve a three-set Venn diagram on the same line, which is going to be a easy to moderate level. And in the upcoming lectures, we'll be looking at some previous year questions, previous year LRDI sets based upon Venn diagram. So let's quickly look at today's set. Okay, so the set reads as a recreational group named Leisure Pulse Private Limited conducted a survey among 735 residents of a town to understand their preferences for three weekend activities, which is gaming, reading and cycling. So तीन तरह के यहाँ पे weekend activities करे गए हैं जिसके बारे में सर्वे करा गया है. The activities are gaming, reading and cycling. And the following data that has been received through that survey, right? एक एक करके सारे statements को देखते हैं, then we'll move ahead, right? Now first, statement number one. Then the number of people who enjoy both gaming and reading is 20% less than those who enjoy both cycling and reading. ठीक है? क्या है? Those who enjoy gaming and reading. You need to be careful, guys. यहाँ पे gaming and reading लिखा हुआ है, not cycling नहीं लिखा हुआ है, right? ठीक है? So which is 20% less, right? So simple size statement दिया हुआ है, we can a direct statement we can use in our Venn diagram. Second, the number of people who enjoy only gaming, right? मतलब there is no overlap of reading and cycling, right, at all. So only gaming is 13 more than 24 times the number of people who enjoy all the three activities. All the three activities मतलब gaming, reading and cycling तीनों. ठीक है? Third statement क्या बोलता है? The number of people who enjoy only cycling is 8 less than 4 times the number of people who enjoy only reading. Only reading अभी आपको पता है, समझ में आ जाएगा. ठीक है? Statement number 4, the number of people who enjoy both gaming and cycling is double the number of people who enjoy only cycling and reading. ठीक है? अगला स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ पीपल हु एंजॉय ओनली साइकिलिंग टू दोज हु एंजॉय गेमिंग एंड साइकिलिंग बट नॉट रीडिंग. ठीक है? ओके, सो वेरी स्पेसिफिकली इट इज रिटन गेमिंग एंड साइकिलिंग बट नॉट रीडिंग इज इन द रेशियो 12:7. ओके, सो अभी तक जितने भी स्टेटमेंट दिखे हैं सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स ही दिख रहे हैं. सो देर इज नथिंग मच टू कॉम्प्रीहेंड. डायरेक्टली आप उसको अपने वेन डायग्राम में यूज कर सकते हो. ठीक है? आगे देखते हैं. तो द नंबर ऑफ पीपल हु एंजॉय ऑल द थ्री एक्टिविटीज इज 1/3 टू दोज हु enjoy gaming and reading but not cycling. ठीक है? Same kind of statement. Seventh, the number of people who enjoy only reading is 20 more than 1/7 of the total surveyed population, right? तो सारे के सारे statements अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो straight forward statement ही है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन नहीं है. एंड नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स भी ठीक ठाक है. 7 स्टेटमेंट्स है, बहुत सारा डेटा दिया हुआ है टू वर्क अपॉन, राइट? सो मोर डेटा, लेस कॉम्प्रिहेंशन, विच मेक्स दिस सेट काइंड ऑफ इजी टू मॉडरेट लेवल सेट्स. Quickly look at the questions. First question is how many people enjoy both gaming and cycling. एक बार अगर आप वेन डायग्राम बना पा रहे हो तो ये आराम से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सेकंड, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु एंजॉय रीडिंग, हाउ मेनी पीपल एंजॉय इधर गेमिंग और रीडिंग और बोथ, एंड लास्टली व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट एंजॉय एनी ऑफ द. ओके, मतलब एक बार अगर आपको सारा का सारा एक बार आप अगर वेन डायग्राम अच्छे से फिल कर पा रहे हैं तो आप इजिली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. सो जल्दी से वेन डायग्राम बनाते हैं. Now, so this is the Venn diagram that we need to fill, right? ठीक है? So I'll write the total sample space here, which is how much? This is total sample space, that is S equals to कितना? 735. So there are 735 people who have participated in this survey, right? Now, एक बार इन सारे सर्कल्स को क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं लिख देते हैं. सो द फर्स्ट सर्कल, सो दिस लेट्स से दिस एंटायर सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग गेमिंग. सो दिस इज गेमिंग, ये गेमिंग हो गया. सो दिस विल बी रीडिंग, गेमिंग, रीडिंग, एंड दिस इज cycling. This is cycling, right? Now, the number of people who enjoy both gaming and reading. Okay, so I'll now name all the reasons, right? So let's say this is A, this is B, this is C, and ABC represents only gaming, only reading, and only cycling, right? Similarly, अगर आप
ABC हो गया, so let's name it D, this is E, this is F and this is G, right? So D, E, F क्या हो गया? D is both gaming and reading, not cycling. Similarly E आप देखोगे तो E क्या है? Reading and cycling, not gaming. Similarly F देखो क्या है? F is gaming and cycling, not reading. And G क्या है? G is all four. ठीक है? Now अब स्टेटमेंट्स देखते हैं जल्दी से. नाउ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु एंजॉय बोथ गेमिंग एंड रीडिंग. गेमिंग एंड रीडिंग क्या है? गेमिंग एंड रीडिंग इज डी, बट डी अकेले नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे स्टेटमेंट में ओनली गेमिंग रीडिंग नहीं लिखा हुआ है और ना ही ये लिखा हुआ है गेमिंग रीडिंग नॉट साइकिलिंग, ये भी नहीं लिखा हुआ है. दैट मीन्स व्हाट? गेमिंग रीडिंग देखो डी रीजन में भी है और जी रीजन में भी है. सो आई विल से डी प्लस जी, राइट, इज इक्वल्स टू 20% less. Now what is the multiplying factor? This is a concept of percentage, right? We know 20%, the fraction for 20% is 1 by 5. So the multiplying factor is 4, 5 minus 1, 4 by 5, right? So this is 4/5 of the number of people, 4/5 to those who enjoy both cycling and reading. Guys, again you need to be careful. Cycling and reading लिखा हुआ है लेकिन not gaming नहीं लिखा हुआ है, या फिर only cycling and reading नहीं लिखा हुआ है, right? In that case you need to consider cycling and reading, right? Cycling and reading तो E और G दोनों ही आएंगे. So this is E plus G. This is the first data that we got. ठीक है, चलो second देखते हैं. Second, the number of people who enjoy only gaming. Okay, so only gaming क्या है हमारे पास? Only gaming is A. So A is equals to only gaming is 13 more than 24 times the number of people who enjoy all the three activities. अच्छा, all the three activities क्या है? All the three activities तो G है. So that is equals to how much? 24 times of G, right? So this is 24G and plus 13 more लिखा हुआ है इसलिए plus 13 कर देंगे. So second statement, first is done, second is also done. हम लोग equation एक बार लिख लेते हैं. Third, the number of people who enjoy only cycling. Only cycling क्या? अब देखो only cycling तो C है. So third data that we get C. Only cycling तो C है. C is equals to what? देखते हैं. Is 8 less than 4 times the number of people who enjoy only reading. अच्छा, only reading कितना है? Only reading तो B है, तो 4B हो जाएगा और क्या है? 8 less है तो -8 करना पड़ेगा. So this is the third statement. Fourth देखते हैं. Fourth is third is done. Fourth, the number of people who enjoy both gaming and cycling. Gaming and cycling क्या है? देखो gaming and cycling तो F plus G दोनों ही होगा, right? So this is F plus G is equals to gaming and is double the number of people, is equals to double the number of people who enjoy only cycling and reading. That means what? Only cycling and reading बोल रहा है मतलब not gaming. Gaming नहीं हो सकता है तो क्या होगा? E plus G नहीं होगा, इस बार सिर्फ और सिर्फ E होगा. So 2E कर देंगे यहाँ पे. Fourth हो गया. Fifth, I think you have understood how I am making the equations out of the given statements, right? Fifth देखते हैं. The number of people who enjoy only cycling. Only cycling, अब देखो only cycling क्या है? Only cycling is C, right? Only cycling is C. To those who enjoy the gaming and cycling but not reading. Okay, gaming, अब देखो ये भी straight forward ही लिखा हुआ है. So gaming and cycling but not reading मतलब C is to F, the ratio लिखा हुआ है तो C is to F कितना है? C is to F is equals to how much? Is equals to 12 is to 7. This is 12 is to 7. Okay, लिखो पढ़ो, देखो यहाँ पे क्या लिखा? Only cycling to those who enjoy gaming and cycling but not reading is in the ratio 12 is to 7. So fifth statement भी देख लिया. Sixth statement देखो, the number of people who enjoy all three activities. Okay, all three activities मतलब G, right? G. So यहाँ पे G कर देते हैं. So G is equals to, देखो क्या है? Is 1/3 to those who enjoy gaming and reading not cycling. अब gaming and reading not cycling क्या है? Gaming and reading not cycling क्या है? D के बराबर है. So this is G is what? 1/3 of D. So 1/3 of D into D. ठीक है, ये 6 स्टेटमेंट्स हो गए. नाउ लास्ट वन देखो एक बार. द नंबर ऑफ पीपल हु एंजॉय ओनली रीडिंग. अच्छा, ओनली रीडिंग क्या है? ओनली रीडिंग तो B है. सो ओनली रीडिंग B. सो B इज इक्वल्स टू, ठीक है, दिस इज द 7th data that we are getting. So B is equals to 20 more than 1/7 of 1/7 of total survey. Okay, so 1/7 of 1/7 मतलब 1/7 into 1/7 of the total surveyed population. Total survey population कितना है? That is equals to 735 into 735. Right, and plus 20 भी करना पड़ेगा. So this is plus 20. So I think the 7th data, अगर आप ध्यान से देखोगे 7th data is the one
वेयर वी कैन स्टार्ट विथ, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया तो b का डायरेक्ट वैल्यू मिलेगा, देखो 7 से आप इसको काटोगे सो दिस विल गो बाई 105 टाइम्स जाएगा, एंड दिस 7 से काटोगे तो ये 15 टाइम्स जाएगा। 15 एंड 20 इज 35, सो b, नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ b का वैल्यू कितना हो गया, दिस बिकम्स 35। तो यू कैन स्टार्ट, देखो तो पहला स्टेटमेंट जहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते थे दैट इज स्टेटमेंट नंबर 7, राइट। नाउ डू वी हैव एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू बी, बी से रिलेटेड कुछ, देखो यस बी से रिलेटेड स्टेटमेंट नंबर 3 है, देखो स्टेटमेंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, c इज इक्वल्स टू 4b माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 4 इंटू b, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू तो 35 है, b इज 35, 4 इंटू b माइनस 8, अब 35 इंटू 4, 35 इंटू 2 इज 70, 70 इंटू 2 इज 140, 140 माइनस 8 इज 132, राइट, दैट इज c का वैल्यू भी मिल गया 132, ये भी मिल गया। तो वी हैव यूज्ड द स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 7 भी हो गया। नाउ थिंक अबाउट, नाउ डू वी हैव एनीथिंग रिलेटेड टू b एंड c, अब देखते हैं b एंड c। अच्छा एक चीज देखो, c से रिलेटेड c एंड f मिल रहा है, स्टेटमेंट नंबर 5 यूज कर सकते हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट नंबर 5 में देखो c इज टू f कितना है, c इज टू f इज 12 इज टू 7, दैट मीन्स 12 पार्ट इज correspond to 132, 12 part correspond to 132, 1 part correspond to 11, 1 part 11 हो जाएगा, तो 7 part कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, राइट। रेशियोज में ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लास में पढ़ाए गए हैं, हाउ आई हैव डन दिस, ठीक है। So 12 part is 132, so 1 part will be 11 and 7 part will be 72. So f का वैल्यू हम लोगों को कितना मिल गया, this will be 77. So हम लोगों ने फिफ्थ स्टेटमेंट को भी मत कर लिया। Now we have the value related to b, f and c हमारे पास है, ठीक है। अच्छा g का वैल्यू कितना है, 1/3 of d। अगर g का वैल्यू 1/3 of d है, अगर मैं इसको x अज्यूम कर लूँ, लेट्स से g का वैल्यू x है, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है, यूज कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये भी हो गया 6 स्टेटमेंट। अच्छा एक चीज और देखो, f प्लस g का वैल्यू कितना है, 2e के बराबर है, ओके। सो आई एम राइटिंग इट हियर, f स्टेटमेंट नंबर 4 लिख रहा हूँ, f प्लस g का वैल्यू 2e के बराबर है। अच्छा f एंड g मिला के कितना आ रहा है, 77 प्लस x है, ओके। सो 77 प्लस x इज इक्वल टू 2e, ठीक है, ये हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट नंबर 4 देखो, सॉरी 1 देखो, स्टेटमेंट नंबर 1 अगर आप देखो तो d प्लस g का वैल्यू कितना है, d प्लस g का वैल्यू, ओके 3x प्लस x, d प्लस g इज इक्वल्स टू, d प्लस g कितना है, 4/5 ऑफ e प्लस g, e प्लस g है। अब d प्लस g कितना है, d प्लस g 3x प्लस x कितना हो गया, 4x है, 3x प्लस x 4x, 4x इक्वल्स टू 4/5 इंटू e प्लस g, राइट। 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स व्हाट, e प्लस g का वैल्यू कितना आ गया, e प्लस g का वैल्यू हमारे पास 5x मिल गया। अब ध्यान से देखना, e प्लस g इज 5x है ना, e प्लस ये दोनों मिला के e प्लस g को मिला के 5x हो रहा है, g तो अकेले खुद ही कितना है, x है। अगर g x है तो इसका मतलब x e कितना होगा, e विल बी 4x, तभी तो कंप्लीट 5x बनेगा। सो नाउ आई कैन से e का वैल्यू कितना हो गया, दिस बिकम्स 4x। I think this is clear to everyone, right? अब आप सोच के देखो, can we put this e equals to 4x, e equals to 4x, क्या हम ये वाले स्टेटमेंट में पुट कर सकते हैं, विच इज 77 प्लस एक्स। तो यहाँ पे पुट कर दो 77 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू इज 4x, 2 इंटू 4x, राइट। सो 4 इंटू 2 8x माइनस एक्स, सो 7x इज इक्वल्स टू 77 मिला, तो x का वैल्यू कितना मिल गया, x विल बिकम्स 11, x का वैल्यू कितना हो गया 11, तो x का वैल्यू 11, दैट मीन्स व्हाट, g आई वी गॉट द वैल्यू ऑफ g का वैल्यू कितना हो गया, g इज इक्वल्स टू कितना 11 बिकॉज x वी गॉट एज 11, सो this is 11 and if this is 11 d is equals to 3x and we know x equals to 11, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 33, d is equals to 33, ये वाला वैल्यू भी मिल गया आप लोगों को, देखो। सो दिस बिकम्स कितना, दिस बिकम्स, ये हो गया आपका 33, ठीक है। सो बहुत सारा डेटा मिल गया एक्सेप्ट ए। अब देखो बाकी सारा तो मिल गया ना, ऑल वी गॉट ऑल द रीजन एक्सेप्ट ए। अब ए हम लोगों को पता है, ए इज इक्वल्स टू 24g प्लस 13, 24g, सो 24 इंटू 11, g का वैल्यू कितना था 11, 11 प्लस कितना 13, सो 24 इंटू 10 इज 240, 240 प्लस 24 इज 264, 264 प्लस 13 इज इक्वल्स टू कितना 277, तो ये भी आपको मिल गया। सो ए का वैल्यू कितना हो गया 277,
दिस इज हाउ, बहुत इजीली आराम से आप कर सकते थे. दिस इज अ इजी सेट गाइस, एंड ग्रेजुअली विल increase the difficulty level as such, right? Now based upon this Venn diagram, let's solve the set, the questions related to this set. First, how many people enjoy both gaming and cycling? Guys, again careful, both लिखा है, gaming and cycling. You need to be careful, यहाँ पे ओनली गेमिंग साइकिलिंग या फिर गेमिंग साइकिलिंग एंड गेमिंग साइकिलिंग नॉट रीडिंग नहीं लिखा हुआ है. तो बोथ गेमिंग एंड साइकिलिंग लिखा हुआ है, दैट मीन्स व्हाट, साइकिलिंग एंड गेमिंग एंड साइकिलिंग, दिस विल बी 77 प्लस 11, ये दोनों ही मेरे आंसर होंगे. तो 77 प्लस 11 इज 88. 88 इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट का आंसर विल बी 88, राइट? नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु एंजॉय रीडिंग? रीडिंग वाले एंजॉय रीडिंग. अब देखना है रीडिंग में क्या आएगा. रीडिंग में ओनली रीडिंग हो सकता है, ओनली रीडिंग, रीडिंग प्लस गेमिंग वाले भी आ सकते हैं, रीडिंग प्लस साइकिलिंग भी हो सकते हैं, और रीडिंग प्लस गेमिंग प्लस साइकिलिंग. ये तीनों ही कॉम्बिनेशन वाले आप बोलोगे दीज आर रीडिंग, राइट? तो मतलब इस पूरे, दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग द सम ऑफ द नंबर्स इन द सर्कल ऑफ रीडिंग, राइट? तो रीडिंग के सर्कल में देखो कौन कौन है, 35, 33, 11 एंड 4x. वी नो द वैल्यू ऑफ 4x, राइट? आई विल पुट द वैल्यू ऑफ 4x हियर. 4x का वैल्यू कितना, x, सिंस x इज 11, तो 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 44. सो दिस वैल्यू इज 44. सो माय आंसर इज 4, 5, 5 and 3, 8, 8, 3 is 11. This is 110 plus, this is 4 plus 1, 5 and 5, 10 plus 13. So that becomes 123. So there are 123 people who enjoy reading. So answer is 2, 123. Third question. How many people enjoy either gaming or reading but not both? तो क्या करना पड़ेगा आपको, सारा गेमिंग और सारे रीडिंग को ऐड करना पड़ेगा, और जहां भी इनका ओवरलैप है उनको हटाना पड़ेगा. देखो, तो अगर आप ध्यान से देखो, आई चेंज द कलर एंड देखो, तो मैं बोल सकता हूँ, देखो ये गेमिंग है, ये भी गेमिंग है, लेकिन 33 एंड 11 की बात करेंगे तो ये गेमिंग एंड रीडिंग दोनों है. ऑन द अदर हैंड इफ यू सी दिस 35 एंड दिस 44, ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको चाहिए गेमिंग प्लस रीडिंग, नॉट गेमिंग प्लस रीडिंग, राइट? ये जो दोनों गेमिंग, ओनली गेमिंग, हम लोगों को चाहिए क्या, ओनली गेमिंग, ओनली रीडिंग, नॉट गेमिंग प्लस रीडिंग. ठीक है, तो ओनली गेमिंग कितने हो जाएंगे, 277 प्लस 77. सो दिस इज 277 प्लस 77, राइट? एंड साथ में 35 प्लस 44, 35 प्लस 44. सो द आंसर इज 277 प्लस 77 प्लस, ये हो गया आपका गेमिंग वाले, ठीक है, प्लस आगे अगर और देखो 35 प्लस 44, ये रीडिंग वाले 35 प्लस 44, राइट? सो दिस इज हाउ मच, 270 प्लस 70, 354 हो जाएगा ये, 354 प्लस दिस इज 77, राइट? यस, तो 350 एंड 70, 420 प्लस दिस इज हाउ मच, 11. So this is 431. Is the option 431? 430. Oh, I made some mistake then. Okay, I'll just add it one more time. So this is 7 plus 7 is 40. Okay, 270 plus 70. This is 340 plus 14. Right, so this is 354. 354 plus 77. Am I making any mistake? 35 plus 44. Okay, 35 or 44 is not 77. This is 79. This is 79. So 2 was missing, so 2 will be added. So this will become 433, right? So this is 79. So this will become 433. So 433 is the correct answer. I'm sorry. Right. Look at the next question. What is the number of people who do not enjoy any of the 3 weekend series? अब देखो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए क्या करना पड़ेगा. Now all those who are represented, all these numbers who are represented here in the Venn diagram, representing the people who enjoy at least in at least one of this
in at least one of the three activities, right? But इनमें से जो अगर और टोटल कितने 735, तो जो लोग इस वेन डायग्राम में नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, राइट? सो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? सो माय आंसर विल बी 735 माइनस ऑल दोज हु आर रिप्रेजेंटेड इन द वेन डायग्राम, राइट? सो ऑलरेडी हम लोगों ने ऐड कर दिया था, दिस इज 277, दिस इनको ऐड कर चुके थे हम लोग, विच इज 433, राइट? सो यहाँ पे 433 आ चुका था। अब उसमें ऐड करना है 44 प्लस 132 और ऐड करना है 44, सो दिस इज 433, 132 ही है, yes, and then one is remaining which is 11, yes 11, right? ऐड कर दो आप इसको। so this is 325 plus 1 6, 336 plus 1 7, and then this is 4 plus 1 is 5, 576, right? 576, and the total number of people that we have is it correct? I think let me check it once. 277 plus 77 plus 35 plus 44 we already have added. Okay, so 33 more is, because this 11 and 33 must be added, right? So this has to be 33 more plus 33 or add kar diya, so this will become how much? This is 609. So the total number of people is 735 minus 609. So this is 126. So the answer for this question is 126. Hope you enjoyed this. Last वाले question में थोड़ा calculation होता है when you are adding all the numbers in the Venn diagram, but more or less this is clear to everyone, right? I hope you have enjoyed this, guys, and thank you for watching the video. And if you have liked the session, please do subscribe to the channel and press the bell icon to get all the notification for all the videos. Thank you.